Welcome everyone to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers and how to extract important points from a newspaper article from UPSC perspective. So, this newspaper article is from The Hindu of 23rd February. The article is about why is three language policy controversial. कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद विवादों में क्यों है क्या विवाद में है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी ठीक है तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी विवाद में क्यों है दिस इज द आर्टिकल ऑल अबाउट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी एंड व्हाई इट इज controversial. So this is the introductory part. It says that Indian government has withheld. You should be having aware. You should be aware of the word meaning of the word withheld. This much in funds due to Tamil Nadu under the Samagra Shiksha scheme for refusing to join PM Shri initiative. Okay. This fact is not important. How much fund has been withheld by government? Like कितने पैसे सरकार ने नहीं दिए रोक दिया मतलब इतना पैसा यूनियन गवर्नमेंट वाज सपोज टू गिव टू तमिलनाडु बट इट डिडंट गिव देम व्हाई डिडंट गिव देम और ये जो फंड था किसके क्यों ड्यू था सरकार को यूनियन गवर्नमेंट को क्यों देना था बिकॉज ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम ओके समग्र शिक्षा स्कीम ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो समग्र शिक्षा स्कीम ठीक है या आप 3S कह लो इसको तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट व्हाट आर इट्स प्रोविजंस मिनिस्ट्री कौन सी है और यूनियन एंड सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है ठीक है इसी स्कीम के अंतर्गत अंडर दिस स्कीम द यूनियन गवर्नमेंट वाज सपोज टू ट्रांसफर दिस मच अमाउंट ऑफ फंड टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये स्कीम इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए why did union government deny transferring funds because Tamil Nadu has refused to join PM Shri initiative again one more scheme is here you should be aware of PM Shri जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट अपने नोट्स देखिए और पीएम श्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको ये इंपॉर्टेंट है while TN means Tamil Nadu is eager to participate in the PM Shri scheme, it staunchly opposes accompanying mandate to implement the National Education Policy 2022. Staunchly opposes मतलब कड़ा विरोध कर रहा है तमिलनाडु पीएम श्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है बट पीएम श्री के लिए जो इम्प्लीमेंट करने का जो एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है accompanying mandate to implement PM Shri is National Education Policy. Tamil Nadu is opposed to few of the provisions of National Education Policy. तो National Education Policy 2020 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आप इसको अच्छे से कर सकते हैं प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि है क्या पॉलिसी इस पॉलिसी के प्रोविजंस क्या है क्या टारगेट है वन ऑफ द स्टेट्स कोर ऑब्जेक्शंस to the NEP is its insistence on adopting three language formula in schools. Why Tamil Nadu is opposing NEP? Because NEP insists, मतलब NEP इस बात को जोर दे रहा है कि you should be implementing means the state should be implementing three language formula. अब थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस आर्टिकल व्हाट इज थ्री लैंग्वेज फार्मूला now, here it is something like not that important. Some political, you can say, dialogues. Union Education Minister Dharmendra Pradhan rejected any concession in seniority and must align with the Constitution. Tamil Nadu Chief Minister questioned which provision of the Constitution justifies such mandates. Has declared that they still will not submittable. ठीक है उतना important नहीं है. Overall, आप these sentences, these two statements, overall highlight the fact that union government and state government are at opposite sides and both are kind of fighting and arguing with each other but this part of the introduction is very important in terms of it is loaded with information you need to extract those key terms from this paragraph and you need to work on it as identified Samagra Shiksha scheme, PM Shri, NEP, and three language formula. So these four are kind of very much important for prelims as well and mains as well. What does the NEP 2020 state?
NEP 2020 has retained the three language formula, a concept first introduced in the NEP of 1968. NEP 2020 जो है retained, NEP 2020 में थ्री लैंग्वेज फार्मूला है. The three language formula was first introduced in NEP of 1968. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी NEPs were there. ठीक है. फर्स्ट NEP कौन सा था? ठीक है. एंड अभी वाला तो 2020 कौन से नंबर का है? तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो इस आर्टिकल में दिए गए हैं. यू नीड टू डू होमवर्क ऑन दीज फैक्ट्स, दीज स्टफ्स. द की डिफरेंस बिटवीन 1968 and 2020 NEP is that then NEP advocate for Hindi to be compulsory language across the nation. 1968 का जो NEP था, that said that Hindi has to be compulsory. So what basically is three language formula is that three language formula says that three languages should be taught in schools. ओके. अब इन तीन लैंग्वेज में से कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्टेट चुनते हैं, इसी पे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रिक्शन होता आया है पहले भी. तो 1968 का जो पॉलिसी था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट सेड दैट वन ऑफ द लैंग्वेजेस मस्ट बी हिंदी. अब तमिलनाडु में देर आर तमिलियंस, दे हैव देयर ओन कल्चरल एंड लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, सो दे अपोज दिस कि आई कैन वी शुड नॉट बी कंपल्सरीली रीडिंग और स्टडिंग हिंदी. So this was the issue regarding 1968 policy. Now, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स were required to teach. 1968 की पॉलिसी के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स required to teach Hindi, English, and a modern Indian language, preferably South Indian language, while non-Hindi speaking states were expected to teach local regional language, Hindi and English. ठीक है. तो जो तीन लैंग्वेजेस की हमने अभी बात करी कि 1968 वाली लैंग्वेज पॉलिसी में देयर इज थ्री लैंग्वेज. तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, मतलब आप कह सकते हो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मीन्स नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, उसमें कहा गया कि वन लैंग्वेज शुड बी हिंदी, वन लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश, एंड वन लैंग्वेज शुड बी एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज दैट कैन बी साउथ इंडियन लैंग्वेज. ठीक है. ये केस था नॉर्थ स्टेट के लिए. ओके. व्हाट वाज अबाउट साउथ स्टेट? साउथ के स्टेट में था, इट सेड वन शुड बी इंग्लिश. While non-Hindi speaking states, non-Hindi speaking state means the southern states, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, they were expected to teach local regional language. One should be local language, okay, any of their choice, like Tamil. One should be Hindi, one should be English, and one should be Hindi. So this was the case for southern states. ठीक है. In contrast, NEP 2020 offers greater flexibility. यहाँ पे हिंदी को कंपलसरी किया गया, ठीक है, इंग्लिश को भी कहा गया, बट NEP 2020 जो है दैट टॉक्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. इतना रिजिड नहीं है लाइक 1968 की तरीके. इट डज नॉट इम्पोज एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑन एनी स्टेट. कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पोज नहीं करता. इट स्टेट्स दैट द थ्री लैंग्वेजेस लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी द चॉइसेस ऑफ स्टेट्स, रीजन्स, एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट देमसेल्फ. 2020 पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इट गिव्स ऑप्शंस कि आपको कौन-कौन से चॉइसेस, कौन-कौन से लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए. चॉइस दे दिया गया, किसको, स्टेट डिसाइड कर ले, रीजन डिसाइड कर ले, एंड स्टूडेंट कैन आल्सो डिसाइड. बट द कंडीशन इज एट लीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस नेटिव टू इंडिया. नेटिव टू इंडिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. आपको पता होना चाहिए कि विच आर द लैंग्वेजेस दैट आर नेटिव टू इंडिया. ठीक है. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक होमवर्क है, नीड टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेजेस विच आर नेटिव टू इंडिया. तो NEP 2020 कहता है कि जो थ्री लैंग्वेजेस हैं, थ्री लैंग्वेजेस पॉलिसी में, इसमें से जो दो लैंग्वेज हैं, दोज शुड बी नेटिव टू इंडिया. मतलब इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, असमीज, काइंड ऑफ. अब कितने लैंग्वेजेस हैं आप पता करके बताइए. दिस मीन्स इन एडिशन टू द स्टेट्स लैंग्वेज, इन एडिशन टू, स्टेट अपना लैंग्वेज तो रखे, ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है वो तो रखे, लेकिन उसके एडिशन में चिल्ड्रन वुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न एटलीस्ट वन अदर इंडियन लैंग्वेज, नॉट नेसेसरली हिंदी. एक अपना, सपोज कीजिए कि तमिलनाडु ने एक अपना लोकल लैंग्वेज रख लिया तमिल,
सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रख लिया। बट जो थर्ड लैंग्वेज है, दैट हैज टू बी ऑफ इंडियन नेटिव। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे तमिल भी तो इसमें क्या होगा कि जो लोकल लैंग्वेज हुआ, दैट इज ऑल्सो नेटिव टू इंडिया। और अगर हिंदी रख लेता है तो दैट इज ऑल्सो नेटिव टू इंडिया। हिंदी की जगह संस्कृत रख लिया, दैट इज ऑल्सो नेटिव टू इंडिया। ठीक है, टू लैंग्वेजेस शुड बी नेटिव टू इंडिया। एंड इट डज नॉट से कि हिंदी ही रखो, हिंदी मत रखो, आप कोई जरूरत नहीं हिंदी रखने की। बट लैंग्वेज जो हो, नेटिव लैंग्वेज हो, इंडिया का लैंग्वेज हो, कोई भी दो। और एक इंग्लिश रख लो। The policy also emphasizes bilingual teaching, particularly in the home language, mother tongue and English. Conspicuously, इसका मतलब पता कीजिए। Conspicuously मतलब noticeably, it places significant emphasis on Sanskrit as an optional choice within the three language formula. अब ये जो है राइटर साहब का ओपिनियन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज राइटर साहब को ऐसा लग रहा है कि फोकस इज ऑन संस्कृत। हमें तो कोर फैक्ट पे चलना है कि कोर फैक्ट ये है कि जो लैंग्वेज है, दो नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए और एक आप कोई सा भी रख लो। इंग्लिश की जगह फ्रेंच रख लो, बट दो लैंग्वेज नेटिव होना चाहिए। दिस इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ एनईपी 2020। व्हाई इज देयर अपोजिशन टू दिस पॉलिसी इन तमिलनाडु? अब देखते हैं कि इस पॉलिसी का अपोजिशन हो क्यों रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु हैज लॉन्ग रेसिस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। ठीक है, हिंदी का इम्पोजिशन अपोज करते आए हैं वो। ठीक है, in 1937, Rajaji government in Madras proposed making Hindi a compulsory subject in secondary schools. The Justice Party fiercely opposed it. कुछ बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि पहले के टाइम क्या था, मीन्स प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, राजाजी गवर्नमेंट थी जो, तो उस गवर्नमेंट ने कोशिश करी हिंदी इम्पोज करने की, जिसका जस्टिस पार्टी ने अपोज करा था, विरोध किया था उसका। अब जस्टिस पार्टी के बारे में एक मॉडर्न हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से जस्टिस पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सपोज कीजिए यूपीएससी ट्राइज टू फ्रेम अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज पॉलिसी एंड ऑल, कि इसको करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से कनेक्ट करके पूछे, तो यूपीएससी में आस्क यू अबाउट रोल एंड पॉलिसीज ऑफ राजा जी। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। यूपीएससी में ऑल्सो आस्क यू अबाउट जस्टिस पार्टी, उनका स्टैंड और उनके लीडर्स। ठीक है, चांसेस है ऐसा फ्रेम कर सकता है यूपीएससी। ऐसा क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी कनेक्टिंग करंट अफेयर्स विद एमआईएच। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ऐसी चीजें दी नहीं गई हैं, बट ओवरऑल एक आइडिया दिया जा रहा है कि यहाँ पे सच अ कनेक्शन इज पॉसिबल। तो बताया जा रहा है कि उस टाइम में जो हुआ था, ऐसी पॉलिसी जो राजा जी लाने की कोशिश किए थे, तो दो लोग थे जिन्होंने एजिटेट किया, विरोध करा, एंड दे बिकेम आइकन्स ऑफ एंटी हिंदी इम्पोजिशन। ठीक है, हाउएवर राजा जी इवेंचुअली रिजाइन, राजा जी ने इस्तीफा दे दिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विथड्रू द ऑर्डर इन 1965। ओवरऑल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो याद करने लायक चीज थी मैंने अभी आपको बता दिया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 1965, as the deadline for adopting Hindi as a sole official language across India approached, the state witnessed violent protests that led to the death of at least, ठीक है, कितने लोग मारे गए, मृत्यु हो गई लोगों की, देहावसान हो गया, सेल्फ इमोलेशंस, आत्मदाह कर लिया लोगों ने, खुद को आग लगा ली, इसके विरोध में कि हमारे यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलेगी, वी विल अपोज हिंदी, इस तरीके की चीजें होने लगी। द एजिटेशन रिसर्फेस्ड व्हेन पार्लियामेंट अडॉप्टेड, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1967 and resolution of 1968 which mandated the teaching of Hindi as part of the three language formula. अगेन थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में आस्क यू लाइक विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर थ्री लैंग्वेज फार्मूला। सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड फॉर थ्री लैंग्वेज फार्मूला, और उसके नीचे उसने चार ऑप्शंस दे दिए आपको। एक ऑप्शन में दे दिया एनईपी 1968, एक में दे दिया एनईपी 2020, एक में दे दिया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ठीक है, एक में दे दिया रिजोल्यूशन, और उसके नीचे क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। तो इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस एक्ट ऑफ 1967 एंड दिस रिजोल्यूशन ऑफ 1967 मैंडेटेड द टीचिंग ऑफ हिंदी एज पार्ट ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला। इन दोनों ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला में हिंदी की इंपॉर्टेंस बना के मेंटेन करा। देन कम्स 1968, मद्रास असेंबली लेड बाय सी एन अन्नादुराई लेड फर्स्ट द्रविड़ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आता है मद्रास का। तो मद्रास असेंबली लेड बाय सी एन अन्नादुराई लेड फर्स्ट द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके गवर्नमेंट
adopted a resolution calling for the scrapping of three language formula and the elimination of Hindi from the curriculum in TN। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आई डीएम की 1968 में, उसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करा जिसने बोला है स्क्रैपिंग का। तो इतना निटी ग्रिटी डिटेल में आपको नहीं जाना है किस गवर्नमेंट ने क्या करा, ओवरऑल क्रक्स पता होना चाहिए। सिंस देन द स्टेट हैज स्टेट फास्टली फॉलोड इट्स टू लैंग्वेज पॉलिसी टीचिंग तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है, 1968 में ये जो रिजोल्यूशन आया स्टेट गवर्नमेंट का, तब से तमिलनाडु जो है टू लैंग्वेज पॉलिसी को फोकस कर रहा है और सिर्फ तमिल और इंग्लिश ही पढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तमिलनाडु के बारे में, ये कोर क्लैरिटी है यहाँ पे कि तमिलनाडु में टू लैंग्वेज पॉलिसी है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू मैंडेट एंड इम्प्लीमेंट थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये चीज मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द रूलिंग डीएमके एंड द प्रिंसिपल जो हैव कंसिस्टेंटली अपोज। ठीक है, अपोज करती आई हैं दोनों मेजर पार्टीज तमिलनाडु में। In 29, Backlash led the Kasturi Rangan Committee to remove the mandatory Hindi learning clause from the draft। कस्तूरी रंगन कमेटी क्या थी, किस चीज से रिलेटेड थी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, आपको पता होना चाहिए। व्हाई इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी सीन एज एन अटेम्प्ट टू इम्पोज हिंदी। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, आपको वाई वाला एस्पेक्ट है यूपीएससी में, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ दैट वाई एस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में ऐसा क्या है, ऐसी आखिर जो साउथ के स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली तमिलनाडु, वो हिंदी को क्यों विरोध करते हैं, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध क्यों करते हैं। तो बताया जा रहा है कि उन्हें एक स्मोक स्क्रीन के तरीके दिखता है और बैकडोर अटेम्प्ट लगता है हिंदी को इम्पोज करने का। साउथ की पार्टीज और साउथ के पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि ये जो है ना थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, ये बैकडोर अटेम्प्ट है, चुपके से हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। They argue that in practice, the implementation of three language scheme would inevitably lead to the teaching of Hindi, given the limited resources for providing additional language teachers and learning materials। अब ये जो है भले ही पॉलिटिकल पार्टी का एक एलिगेशन आप कह सकते हैं, पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि व्हाई इम्पोजिशन ऑफ, यू कैन से कि हिंदी, व्हाई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी एंड हिंदी इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना क्यों मुश्किल है सदर्न स्टेट में। तो पहली चीज जो कही जा रही है कि द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी इनएविटेबली लीड टू टीचिंग हिंदी। अब दिक्कत यह है कि इसमें टीचर्स और लर्निंग मटेरियल की कमी है। ठीक है, उतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो पहला इशू तो चैलेंज तो यही आ गया कि हम इसलिए इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है बिकॉज रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है। ना हमारे पास एफिशिएंट टीचर्स हैं, ना हमारे पास इफेक्टिव लर्निंग मटेरियल्स हैं। मोर ओवर द इंडियन गवर्नमेंट एंड बीजेपी लीडर्स। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी है कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लीडर्स और उसके पॉलिटिकल लीडर्स जो है अक्सर कहते रहते हैं प्रमोशन ऑफ हिंदी, प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो दूसरा जो रीजन आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज रिगार्डिंग सेंटीमेंट। यहाँ से दूसरा चैलेंज है सेंटीमेंट का। उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं साउथ पीपल को, तमिलनाडु पीपल पर्टिकुलरली। आप उनको बार बार अगर डराते रहेंगे अपने भाषण में कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे, हिंदी को प्रमोट करेंगे, तो सामने वाला तो सोचेगा ना यार कि ये चुपके से लैंग्वेज पॉलिसी के बेसिस पे चुपके से हिंदी को घुसा रहे हैं, हिंदी को लेकर के आ रहे हैं। Then in 2019, the budget allocated 50 crore to support the appointment of Hindi teachers in non-Hindi speaking states। Critics कंटेंट का मतलब पता होना चाहिए आपको। The center's actions do not match its rhetoric का मतलब ही पता होना चाहिए। On promoting regional languages as evidenced by the lack of efforts to hire adequate regional language teachers। ठीक है, वही चीज़ हमने बात करी अभी, जो मैंने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो 2019 के जो बजट में है, यूनियन बजट ने 50 करोड़ रुपए दे दिए, 50 करोड़ रुपीस दे दिए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी टीचर अपॉइंटमेंट के लिए। तो मेंस में इस फैक्ट को आप अगर ऐड करते हैं तो दैट विल गिव डू वैल्यू एडिशन टू योर आंसर। ओके, क्रिटिक्स कहते हैं कि सेंटर का जो एक्शन है ना वो उतना सही नहीं है। तो अगेन ये ओपिनियन है, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाएंगे आप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि टू एंश्योर साउथ इंडियन लैंग्वेज आर टॉट इन स्कूल्स अबव द विंध्यास। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक थर्ड चैलेंज है कि साउथ की पार्टीज को लगता है, साउथ के लोगों को लगता है कि जितना फोकस गवर्नमेंट हिंदी को सदर्न स्टेट्स में करने के लिए, इम्पोज लाने के लिए कर रही है, उतना फोकस सदर्न लैंग्वेजेस को नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में करने के लिए नहीं है।
अबव द विंध्यास, मतलब अगर आपको पता हो विंध्यास की लोकेशन अगर पता हो, तो विंध्यास इज सेड टू डिवाइड इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ। विंध्यास के साउथ के जो स्टेट्स हैं, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। विंध्यास के जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, दे हैव लाइक काइंड ऑफ हिंदी डोमिनेंट स्टेट्स। तो पॉइंट दिया जा रहा है कि जिस 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 तरीके से हिंदी को सदर्न स्टेट्स में लाने की कोशिश की जा रही है, उसी एनर्जी से सदर्न लैंग्वेजेस को हिंदी स्टेट्स में भी लाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो आप इस पॉइंट को वे फॉरवर्ड के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में अगर आप वे फॉरवर्ड इस तरीके से लिख दें कि हिंदी ही नहीं, सदर्न लैंग्वेजेस का ही प्रमोशन होना चाहिए और सदर्न लैंग्वेजेस को भी नॉर्थ इंडियन स्टेट से प्रमोट करना चाहिए, तो नो डाउट आपके आंसर के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बन के आएगा। मिस्टर प्रधान हैज डिफेंडेड द विदहोल्डिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को अवॉइड कीजिए। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? यहाँ पे वे फॉरवर्ड कुछ है। द ओनली वायबल सॉल्यूशन लाइज इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन इश्यूज लाइक एजुकेशन विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है, पॉलिटी रिलेटेड फैक्ट है कि जो एजुकेशन है दैट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि सेवेंथ शेड्यूल जो तीन सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, अब इनके मेजर मेजर सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि उसमें से एक मेजर सब्जेक्ट जो है एजुकेशन, जो कि कहा जा रहा है कि किसमें है, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में कब आया? ओके, बता रहे हैं ना यहाँ पे कि इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट, स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया एजुकेशन। तो ये कब आया, दैट ईयर, ठीक है। और अगर आया तो क्या कोई अमेंडमेंट एक्ट था? अब ये जो कोर कोर इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, वो इस आर्टिकल में नहीं दिए गए हैं, पर अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो दिस विल बी ऑफ इमेंस हेल्प फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इमरजेंसी के टाइम में आया, ठीक है, बट वो ईयर, अमेंडमेंट एक्ट वगैरह आपको पता होना चाहिए। नोटेबली टीएन विद इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग टू लैंग्वेज पॉलिसी हैज कंसिस्टेंटली आउट फ्रॉम मेनी इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिड्यूस ड्रॉप आउट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की टू लैंग्वेज पॉलिसी है, पर टू लैंग्वेज पॉलिसी होने के बावजूद इसने आउट परफॉर्म किया है। तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है दूसरे स्टेट से बहुत अच्छा है। इनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स, रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी न्यूज़ में थी, अगर आप करंट अफेयर्स ट्रैक करते हैं तो बेसिक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स ओवर टीचिंग अ थर्ड लैंग्वेज शुड नॉट बी अलाउड टू डिरेल फंडिंग फॉर समग्र शिक्षा, ठीक है। ये एक ओपिनियन है कि डिसएग्रीमेंट है तो समग्र शिक्षा के फंड को रोकना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिरेल का मतलब पता होना चाहिए आपको। और इस तरीके से आर्टिकल खत्म हो गया। तो ओवरऑल जो इस आर्टिकल का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहा वो ये बताने का रहा कि व्हाट इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी होती क्या है, तमिलनाडु में इसका विरोध क्यों है, और कुछ वे फॉरवर्ड क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के। ये सब कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, इसमें भर भर के दिए हुए हैं। आप उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और उनके ऊपर काम कीजिए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल टॉपिक है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, इस बार फिर से न्यूज़ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको कवर कीजिए। आई विल बी गिविंग सम की नोट्स एंड की वर्ड्स ओवर हियर, यू कैन गो थ्रू देम एज वेल।